Good morning to one and all. Okay, in the semester 5th for the physical chemistry, there are the total 6 practicals. It is visible. Yes, sir, it is. Okay. Okay. See, there are the two that we can say instrumental and non-instrumental experiments. Okay. The experiments of the physical and analytical especially categorized as instrumental and non-instrumental. Means the experiment performed by the traditional method like the titration and all these things are called as the non-instrumental, and instrumental are nothing but the experiment in which we are going to use the conductometer, potentiometer, pH meter, spectrophotometer, colorimeter. These all experiments are termed as a that particular instrumental. Here, the two experiments you can see here. First, to determine the order of a reaction between the K2S28 and the Ki by the fractional change method, and to investigate the adsorption of the acetic acid in the on activated charcoal and test the validity of the Feldix adsorption isotherm. These two experiments are the non-instrumental one. ये kinetics है, ये adsorption isotherm है. Third experiment to determine the solubility and the solubility product of the silver chloride potentiometrically. Potentiometer है, conductometer है. Okay. Then acidic and basic dissociation constant of pH meter है. और एक 6-1 just I am seeing. And sixth experiment is of nothing but the another that is what we can say, it is again your non-instrumental experiment that to determine the molecular weight of a given compound by the RAST method. जैसे कि colligative property के ऊपर ये experiment है. Okay, one by one we will see all these experiments. We will come to the first experiment. The aim of the first experiment to determine the order of reaction between the K2O8 and the Ki by the fractional change method. Okay, fractional change method मतलब chemical kinetics study करना है. अब यहाँ पे what is the chemical kinetics and all these things I am not repeating that things, you know very well. Chemical kinetics में क्या करते हैं हम, rate of reaction study करते हैं. Okay, by correlating the rate you can identify the order of the reaction. Order of reaction मतलब क्या, कितने उसके मतलब that particular what we can see rates को हम differentiate करेंगे और हम ऑर्डर निकालेंगे. ओके, ये डेफिनेशंस अभी जैसे कि अगर इसके ऊपर एग्जाम वाइवा होने वाला है तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर. जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी. ओके, दिस क्वेश्चंस आर देयर कंसर्न टू दिस एक्सपेरिमेंट. अभी K2H28 दैट इज अ पोटेशियम thiosulfate. ओके, K2H28 ऑक्सीडाइजेस Ki to liberate the I2. मतलब क्या है, K2H28 oxidizes Ki to liberate I2. The reaction is as given, 2K2SO4 plus I2. The progress of the reaction is studied by using titrating liberated I2 against the standard in Na2H2O3. अभी standard Na2H2O3 is nothing but a sodium thiosulfate solution using the freshly prepared starch solution as an indicator at a specific time intervals. The reaction is I2 is equal to twice Na2H2O3 plus gives you Na2S4O6 plus twice NaI. That reaction may ask for the viva. The order of reaction is determined by studying the reaction between K2H28 and Ki using the fractional change method. अभी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 0.05 नॉर्मल K2H28 सॉल्यूशन, 0.05 नॉर्मल Ki सॉल्यूशन, 0.002 नॉर्मल Na2H2O3 सॉल्यूशन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च इंडिकेटर, ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, ग्लास टॉपर बॉटल, आइस पीस एक्सेट्रा. सेट 1 और सेट 2, two sets we are going to परफॉर्म. सेट 1 में क्या रहेगा, एक नंबर 1 बॉटल में 0.05 नॉर्मल K2H28 रहेगा और दूसरे बॉटल में रहेगा 0.05 नॉर्मल Ki. ओके,
कीप बोथ द बॉटल्स इन द वाटर बाथ टू अटेन द रूम टेम्परेचर। दोनों ही बॉटल क्या करनी है, वाटर बाथ में रखने की। वाटर बाथ बोले तो क्या, एक पॉट लेने का, उसमें पानी रखने का और उसमें ये बॉटल रखने की। वॉश, रिंस एंड फिल द ब्यूरेट विद 0.002 नॉर्मल Na2:3। Add KI solution from the bottle number 2 to K2:8 solution in bottle number 1. Note the time of mixing as a 0 time. Pipette out 10 cm³ of the reaction mixture in a 150 cm³ of the conical flask at an interval of the 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes from the 0 time and titrate against the 0.002 normal Na2:3 solution from the burette using the few ice pieces and freshly prepared starch solution as an indicator. End point will be from blue to colorless. अभी end point भी आपको वाइवा में आ सकता है. Record the titer reading as a X in the tabular form as shown below. Tabular form दूसरे पेज पे that I will show you. Then दूसरे सेट में क्या लेने वाले हैं, दो separate, again we will take the two separate bottles. Okay. उसमें एक में क्या लें, 25 cm³ 0.05 नॉर्मल K2:8 प्लस वाटर, 25 cm³ 0.05 नॉर्मल K प्लस वाटर 25 cm³. Follow exactly the same procedure as explained in the step number 2, 3, 4 and 5 of the set 1. Same process follow करना है. Okay. अभी सेट 1 में आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है, सॉल्यूशन इन द ब्यूरेट 0.02 नॉर्मल Na2:3 मतलब सोडियम थायोसल्फेट, सॉल्यूशन इन द क्लोनिकल फ्लास्क. अभी दैट अभी कौन सा टाइट्रेशन इसमें इन्वॉल्व है, ये कौन सा टाइप है, कोई बता सकता है? टाइट्रेशन की टाइप कोई बता सकता है? दैट इज अ क्वेश्चन फॉर द वाइवा. कितने टाइप के टाइट्रेशन होते हैं तंजील? Anybody can tell? Hello. हेलो बोलो. सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी. अभी आ रही है? जी सर अभी आ रही है. हाँ, कितने टाइप के टाइट्रेशन होते हैं? 4 टाइप्स. बोलो कौन से? Complexometry, acid base, precipitation and redox. Okay, and fifth one is this iodometric. Okay, ये redox titration के अंडर ही आता है iodometric titration. देन इसमें ऑक्सीडेशन होता है और आयोडीन लिबरेट होता है. दिस इज कॉल्ड एज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन. ये जो टाइट्रेशन है केमिकल काइनेटिक एक्सपेरिमेंट में, इसका नाम क्या है? आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन. और जब भी आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है तब हम कौन सा ये करते हैं, ब्यूरेट सॉल्यूशन यूज करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट. और कौन सा इंडिकेटर रहता है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च इंडिकेटर. End point will be the blue to colorless. Okay, observation table and calculation. टेम्परेचर नोट करना होता है, जो कुछ भी रूम टेम्परेचर है. ओके, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना होता है. टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड करना पड़ता है? 273 प्लस 273. यस, डिग्री में 273 ऐड करने के बाद यू विल गेट द केल्विन, टेम्परेचर इन द केल्विन. ओके, ये ध्यान में रहना चाहिए आपके. देन अभी ये टेबल है, मैंने वहां पे देखे थे हमने, टेबुलर फॉर्म में हमें रीडिंग नोट करना है. 0 मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30 जीरो की रीडिंग ले लेनी है, मगर जीरो से नोट करना है. जब हम मिक्स करेंगे, एक बॉटल को दूसरे बॉटल में ट्रांसफर करेंगे, वो हमारा क्या रहेगा? टाइम ऑफ मिक्सिंग. टाइम ऑफ मिक्सिंग को हम क्या करेंगे? 0. जैसे कि अभी आपने लैब में 10 बजे मिक्स किया उसको, तो 10:05 से आप क्या करेंगे? इसको पिपेट आउट करेंगे. ओके, कितना पिपेट आउट करना है? दैट सैंपल 10 cm³ रिएक्शन मिक्सचर यू हैव टू पिपेट आउट. अभी ये रिएक्शन मिक्सचर पिपेट आउट करने के पहले काइनेटिक्स में केयर करना होता है कि आइस पीस एंड इंडिकेटर कोनिकल फ्लास्क में, क्लीन कोनिकल फ्लास्क में पहले ही लेना होता है. एंड देन यू हैव टू पिपेट आउट दैट रिएक्शन मिक्सचर. समझे? बाद में लेने का नहीं, पहले रिएक्शन मिक्सचर लेने के बाद में आइस डालने का, तो क्या होता है, उतना टाइम ज्यादा चला जाता है.
टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द केमिकल काइनेटिक्स। ओके, देन टाइटर रीडिंग, फिर हम क्या करेंगे, वो रिएक्शन मिक्सचर को ब्यूरेट सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करेंगे, फिर हमको ब्यूरेट रीडिंग मिलेगा, दैट वी विल नोट इन द टेबल इन द सीएम क्यूब। फिर हम क्या करेंगे, ए एंड बी इज इक्वल टू 125 सीएम क्यूब, दैट विल प्रोवाइडेड टू यू। ये वैल्यूज प्रोवाइड रहती है, कांस्टेंट वैल्यू रहती है, जैसे सॉल्यूशन रहता है उस हिसाब से चेंज होती है। इसका कैलकुलेशन हैंडबुक में दिया है। a माइनस एक्स, अभी a के वैल्यू में से x माइनस करना है, मतलब ये 125 माइनस दिस 3.2, जो कुछ भी आंसर आता है हम टेबल में नोट करेंगे, फिर उसका लॉग लेंगे, log a माइनस एक्स इन cm क्यूब। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। देयर इज सेम सेकंड सेट 2 विल बी देयर। अभी जैसे कि सेकंड सेट में क्या था, 25 cm की वो सॉल्यूशन था प्लस 25 cm की वाटर था, उसके लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है और सेम हमें परफॉर्म करना है। ओके, वैसा ही करेंगे हम जैसा पहले सेट में किया था, सेम टेबल है, मगर यहाँ पे ए एंड बी का वैल्यू चेंज हुआ है, दैट इज 62.5, क्योंकि डाइल्यूशन हुआ है, इसलिए समझ में आना चाहिए आपके कि इट इज एन डाइल्यूटेड। ओके, देन हम सेम फॉलो करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25 के डिफरेंस से रीडिंग लेंगे। ओके, और ये आपका सेकेंड टेबल रेडी हो जाएगा। Okay, see here, this is in the table 2. Wait. Okay, just a minute. This is about the second table. Same thing you have to do as the earlier first table. Okay, then you have to plot the graph. अभी ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करेंगे जो स्लोप मिलेगा और स्लोप के ऊपर से हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिलेंगी। log a माइनस एक्स अगेंस्ट द टाइम t का ग्राफ प्लॉट करना है फॉर द सेट 1। अगर आप प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे log a माइनस एक्स जो है y एक्सिस पे रहेगा और वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर the time will be on the x axis in the minute, time मिनट में 5, 10, 15, 20। आप देख रहे हैं कि आपको ऐसा एक नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ मिलेगा। ओके, जिसकी वैल्यू -0.018 होंगी। ओके, सेकेंड आप दूसरा ग्राफ लेंगे, वो भी नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ मिलेगा। ओके, जिसमें भी सेम करना है log a माइनस एक्स वर्सेस दैट टाइम। ओके, देन कैलकुलेशन फ्रॉम द ग्राफ। अभी जैसे कि k पहले कैलकुलेट करना है, k1 k2 आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। k1 कितना आया, स्लोप इनटू -2.303। ओके, इसको मल्टीप्लाई करने का तो ये पॉजिटिव आएगा k1, k2 निकलेगा आपका ये फ्रॉम ग्राफ ऑफ द सेट 2। अभी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है, राइट? उसके लिए ये थर्ड ग्राफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टाइटर रीडिंग वर्सेस द T, मतलब क्या, टाइटर रीडिंग मतलब x की जो वैल्यू आई हो, बड़े 5 मिनट पे x की वैल्यू क्या थी पहले सेट के लिए, सेट 2 के लिए। ये ग्राफ ऐसा मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे, वी हैव टू टेक, ऐसा पॉइंट लेना है हमें कि कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर करो आप जो कि ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट है। जैसे कि x1, पहले सेट 1 के लिए x1 लिया तो उसका t1 आएगा, दूसरी सेट के लिए जो कंसीडर करेंगे वो x2 है एंड दैट इज अ t2। जो ग्राफ के ऊपर आने वाला पॉइंट जो है उसको आप क्या करना है, कंसीडर करना है। और x1 x2 एंड t1 t2, मतलब सेट 1 के लिए x1 x2, ओके, सेट 2 के लिए t1 दैट इज x2 t2, ये वैल्यूज मिलेंगे। यहाँ पे पुटअप करेंगे ये फॉर्मूले में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला दिया है 1 प्लस log टू द बेस 10 t1 माइनस log टू द बेस 10 t2 डिवाइडेड बाय log टू द बेस 10
x2 minus logs to the base 10 x1. अभी t1 t2 x2 x1 इसके वैल्यूज हम यहाँ पे पुट अप करेंगे. आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज you will get these things 1 plus log 15 divided by log 1. इसका रेशियो लेंगे तो you will get a plus 1.176, तो 2.1760. अब इसको राउंड अप करना है नियरेस्ट इंटीजर के साथ, तो n is equal to 2. तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया? 2. Then you have to note in the result reaction between the K2 to K under the experimental condition is of second order, and K for set 1 is that, K for set 2 is that. This is an result that you have to note. ये आपका experiment number 1 है. Then we will move towards the experiment number 2. That is a surface phenomena के ऊपर डिपेंड है ये experiment, जिसे हम adsorption isotherm भी कहेंगे. ओके, इसका एम जो है to investigate the adsorption of acetic acid on activated charcoal and test the validity of friendly adsorption isotherm. ओके, ये क्या करना है हमें? adsorption of the acetic acid on activated charcoal and test the validity of friendly adsorption isotherm. Theory पहले, it is very much important. At a constant temperature, adsorption of the solute depends upon the concentration of the solution, provided the nature and the amount of the adsorbent is kept constant. By taking different concentration of the solution in which the same amount of the adsorbent is added, the extent of adsorption can be varied. For dilute solution, it can be shown that the amount of the solute adsorbed per minute amount of the solvent is directly proportional to the concentration of the solution. Then by plotting appropriate graphs, friendly adsorption isotherm can be verified. ये थ्योरी है. क्या हम करने वाले उसका एक स्मॉल क्या जिसे कहते हैं रिव्यू है. रिक्वायरमेंट 0.5 नॉर्मल एसिडिक एसिड सॉल्यूशन, ये हमारा क्या रहने वाला है? एडसॉर्बेंट रहने वाला है. स्टैंडर्ड 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन एंड एक्टिवेटेड चारकोल, ये चारकोल की पाउडर रहेंगी, ये हमारा एडसॉर्बेंट रहेगा. ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, इंडिकेटर फिनोल्फ्थालीन, डिस्टिल्ड वाटर एक्सेट्रा. ये पहला स्टेप है इसमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड सॉल्यूशन. जो कुछ भी आपको एसिडिक एसिड सॉल्यूशन दिया रहेगा उसको क्या करना है? स्टैंडर्डाइज करना है. रिंस एंड फिल द ब्यूरेट विद द सप्लाइड स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन. Prepare out 10 cm of the acidic acid solution in a conical flask. Add 2 drops of the phenolphthalein indicated. Titrate against a 0.1 normal NaOH solution from the burette till the light pink color solution is obtained. Determine the normality of the acidic solution using the burette reading. Then the determination of the normality of acidic acid solution in different mixture. अभी ऐसा क्यों है determination of normality? तो जैसे कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन रहेगा. जैसे कि पहले बल्क आपको दिया है 0.5 नॉर्मल का एसिडिक एसिड सॉल्यूशन, उसका आपको एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन पता चला तो आप बाय यूजिंग दिस सॉल्यूशन यू कैन प्रिपेयर द रिमेनिंग सॉल्यूशन. ओके, तो जैसे कि यहाँ पे 0.5 नॉर्मल का एसिडिक एसिड लेना है 50 रहे पहला वाला, देन 40 30 20 10, उसमें 10 ml वाटर, 20 ml 30 ml 40 ml ऐसा वाटर ऐड करेंगे तो आपको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन मिलेंगे. प्रिपेयर 5 पैकेट्स 1 gram of activated charcoal each. Add 1 gram of the activated that particular charcoal to each bottle and shake the mixture thoroughly well. Allow the mixture to stand for 30 minutes with the occasional shaking. After the 30 minutes, filter the solution from each bottle through an ordinary filter paper. Reject the first few drops. Collect the solution in 5 separate conical flasks or beakers. Prepare out 5 cm of the solution from each flask and titrate against the standard 0.1 normal NaOH solution using the 1% phenolphthalein as the indicator. End point will be colorless to the pink. ये सिंपल एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है. पहला सेट रहेगा आपका एसिडिक एसिड सॉल्यूशन को आप टाइट्रेट कर रहे हैं. हमने क्या किया है 10 cm की एसिडिक एसिड सॉल्यूशन लिया है. ओके, जो आपको दिया था बराबर, उसका रीडिंग कितना आया यहाँ पे यू कैन सी. अभी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, सिंपल है. ब्यूरेट में NaOH सॉल्यूशन है, आपने 10 cm की एसिडिक एसिड सॉल्यूशन प्रिपेयर आउट किया है, इंडिकेटर फिनोल्फ्थालीन डाला है, कलरलेस टू पिंक कलर आना चाहिए. ओके, पहला रीडिंग 24.9 है, 25 24.9, तो उसका CBR जो है कांस्टेंट रीडिंग जो है 2 कांस्टेंट आने के बाद 24.9, ये पहला टेबल है. फिर डिटरमिनेशन ऑफ द नॉर्मेलिटी ऑफ एसिडिक एसिड इन द डिफरेंट मिक्सचर्स.
अब ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो पहला जो है CER, फर्स्ट वन 0.5 cmp of the original acidic acid solution required 24.9 cmp of the 0.1 normal NaOH solution। मतलब आपका जो यह 5 cmp भी लिया है, ओके, जो आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन था जो आपको प्रोवाइड किया है उसको कितना लगता है? 24.9 cm³ लगता है, बराबर है। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, वो अपना रहा x हुआ, तो बाद में आगे के फॉर्मूले में बताता हूँ। अभी टेबल है आपका, ऑब्जर्वेशन है। वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर 5 cmp ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर द एडसॉर्प्शन, उसे हम ब्यूरेट रीडिंग कहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन द मीन। पहला जो सैंपल है जिसमें आपने फुल्ली मतलब आपका जो 50 ml सॉल्यूशन का है 0.5 नॉर्मल का है, तो उसके लिए जो रीडिंग आएंगे आफ्टर एडसॉर्प्शन, मतलब क्या, चारकोल पाउडर उसमें डाला था, तो सम पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिडिक एसिड गेट एडसॉर्ब ऑन द चारकोल में, तो उसकी वजह से क्या हुआ देखो, 24.9 था, मगर इधर कितना है 22.8, 23, 22.8, तो मीन उसका आएगा 22.8। ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड इन द गिवन सॉल्यूशन C0, तो पहला हम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे C0 0.1 इंटू x डिवाइडेड बाय 5, 0.1 इंटू 24.9 डिवाइडेड बाय 5, तो पहला जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना था 0.498। अब इसका फाइनल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमें अगर कैलकुलेट करना होगा, तो हियर यू कैन सी, पहली बॉटल है नंबर 1, 5 इंटू C इज इक्वल टू 0.1 इंटू ब्यूरेट रीडिंग। अभी C1 मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन 1.1 इंटू ब्यूरेट रीडिंग, ब्यूरेट रीडिंग क्या है 22.8 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या आएगा 0.456। तो यू कैन सी दैट देयर इज अ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। क्या पता चल रहा है आपको? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ है? एडसॉर्प्शन वहां पे हुआ है, राइट। एडसॉर्प्शन होने के बाद ही उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। ऐसे ट्रेंड में आपको रीडिंग मिलेंगे, ओके, मतलब आपका एक्सपेरिमेंट सही चला है। अमाउंट एडसॉर्ब x इज इक्वल टू C0 माइनस C, ओके, तो उसका डिफरेंस लेंगे तो आपको पता चलेगा इतना इतना एसिटिक एसिड एडसॉर्ब हुआ। फिर log x, ये x है उसका log देखेंगे, देन C का log देखेंगे, एंड दिस log x एंड log C इज यू हैव टू टेक फॉर द ग्राफ के लिए हम लेंगे, इसको यूज करेंगे। ये फिर से मैं ये कुछ आपको हर एक स्टेप के लिए बताऊंगा ना, हर एक सॉल्यूशन के लिए सेम करना है। तो log x वर्सेस द log C, log x अभी दोनों भी नेगेटिव में है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला ग्राफ है कि जिसमें log x y एक्सिस पे जो है वो भी नेगेटिव है और x एक्सिस पे log C है वो भी नेगेटिव है। तो ये ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, जो इंटरसेप्ट रहेगा और log k रहेगा। ओके, स्लोप आप निकालेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 से, देन कैलकुलेशन फ्रॉम द ग्राफ log k इज इक्वल टू माइनस 1.21, k तो क्या आएगा, इसका एंटीलॉग देखना पड़ेगा, k इज 0.0616, n इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.23, जो स्लोप आया उसका रेशियो लेंगे तो n इज इक्वल टू 0.4468। ये जो वैल्यूज है आपके जो कुछ भी आए, k is a friendly constant that is having value this, n is that, then the conclusion straight line nature of the graph log C against log x signifies the friendly adsorption isotherm is proved, which can recognize there is a friendly adsorption isotherm। ये एक्सपेरिमेंट नंबर आपका सेकेंड है कि जिसमें x अपॉन m इज इक्वल टू k c रेज़ टू 1 बाय n, ये जो फॉर्मूला है फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का, उसमें हमने log x एंड log c का ग्राफ बनाया, और ग्राफ बनाने के बाद तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ आता है, नेगेटिव क्वाड्रेंट है, नेगेटिव नेगेटिव में उस ग्राफ से बाय दिस ग्राफ वी कम टू नो दैट कि दिस फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इज वेरीफाइड एंड दिस इज एन प्रूव्ड। Okay, this is all about your experiment number 2. Here we will stop. Remaining experiment we will see in the next lecture. Thank you.